Good morning, students. Hope you're all well and safe in your homes. Today, worksheet number 10 of English, dated 28th October 2020, is about grammar topic nouns. Students, you have also studied this topic in class 6th grammar, and today we'll study about singular nouns and plural nouns. जैसा कि आपको पता है बच्चों, nouns, what does noun means? Noun are those words or those things which have name to it, like your name, any place like Delhi where you are residing, or anything like your book, copy, etc. These are called noun words. ये सब आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है. And again, now we'll see singular nouns and plural nouns. Singular noun are those words which are only one. Singular का मतलब होता है one. A singular noun names one person, place or thing. For example, when cat mewed all night. सिर्फ एक कैट रात भर म्याऊ जैसे कैट की आवाज़ होती है वो करती रही. एंड प्लूरल नाउन्स जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. अ प्लूरल नाउन नेम्स more than one person, place or thing. 3 cats mewed all night. First example में बच्चों आप देख रहे हो there is only one cat given and second example में 3 cats are given. So इसी से हमें पता चल रहा है that single और plural में difference क्या होता है. ज़्यादातर हम सिर्फ s लगा देने से वो चीज़ या एनिमल या कोई भी नाउन वर्ड प्लूरल बन जाता है. बट देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स टू बी एडेड. यूजुअली नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल टेबल एंड 5 टेबल्स. एक टेबल एंड 5 tables. So for the first question, add s for the words given and make plural form of each noun word, like spoon, spoons, phone, phones, zebra, zebras, dog, dogs, teacher, teachers, friend, friends, hat, hats, lamp, lamps, store, stores, plant, plants. So do this question in your notebook. Now let's move on to our next question. Read the following and repeat twice. Students, you should read all these regular nouns given to you and see the difference between singular noun and plural nouns. First, only with example of S. One car, 2 cars. One dog, 2 dogs. One book, 2 books. One house, 2 houses. One apple, 2 apples. So बच्चों आपने देखा सिर्फ S लगा देने से एक वर्ड प्लूरल बन जाता है. Now other examples are given to you, like add es. One bus, 2 buses. One match, 2 matches. One dish, 2 dishes. One box, 2 boxes. One quiz, 2 quizzes. So in words में es लगा देने से ये प्लूरल बन जाते हैं. Next example is of using VES. One leaf, 2 leaves. One wolf, 2 wolves. One life, 2 lives. One knife, 2 knives. ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपने देखा जो वर्ड्स F साउंड से फिनिश हो रहे हैं, इन चारों वर्ड्स में लास्ट साउंड F है.
तो जो एफ साउंड से फिनिश होने वाले वर्ड्स हैं विद एन एक्सेप्शन ऑफ रूफ एंड क्लिफ, इन दो वर्ड्स को छोड़ के जो भी एफ साउंड से ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं, अगर हम उन्हें VES ऐड करेंगे तब वो प्लूरल वर्ड्स बन जाएंगे। बट रूफ और क्लिफ को छोड़कर इसमें सिर्फ हमें एस ही लगाना होता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज vowel words which end in Y. We add S in them. Students, read all these two lines and see for yourself what are the exceptional changes given in these two lines for using and changing singular noun to plural noun. You can also write them in your copies. Now on to the next question. Based on above, let's revise. जो भी हमने पढ़ा, let's revise it. Most of the time, add s to make plural like plate, plates. जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में भी देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिर्फ एस वर्ड यूज़ करना होता है, ऐड करना होता है लास्ट में किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने में. सो फॉर एग्जाम्पल प्लेट इज प्लेट्स. सो लेट्स चेंज द वर्ड स्कूप. राइट डाउन इट्स स्पेलिंग व्हेन वी ऐड स्कूप एंड एस. If the word ends in a vowel plus y, just add s. आपने एग्जाम्पल में पढ़ा, जब हम कोई वर्ड y से फिनिश हो रहा होता है और उसके आगे भी s लगा देते हैं तो वो भी उसका प्लूरल नाउन फॉर्म बन जाता है. सो डे को चेंज करके लिखेंगे डेज. If the word ends in vowel plus o, add s. जो वर्ड आपको गिवन है पिस्ताचियो, उसके आगे अगर हम एस लगा देंगे तो वो भी उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगी. इफ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस ओ, एड ES. ज़ीरो के आगे अगर हम ES लगा देंगे ज़ीरोस तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा. इफ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस y, रिमूव y एंड लेस चेरी. अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है यानी वॉवल वर्ड नहीं है लास्ट में और वो y से एंड हो रहा है तो उस y को हटाकर हम LES ऐड कर देंगे तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा. If you hear the sound of S or is at the end, add ES. जैसे डिश. S की आवाज़ या श की आवाज़ जब किसी वर्ड के एंड में सुनाई दे तो उस वर्ड में हम ES ऐड करते हैं, जैसे कि ऊपर आपने एग्जाम्पल्स में पढ़ा. तो डिश के आगे हम ES ऐड करेंगे और उसका प्लूरल वर्ड बनाएंगे. इफ़ द वर्ड एंड्स इन F, देन वी रिमूव F एंड ऐड VES. जैसे हमने लीफ या लाइफ में बनाया, F हटाकर VES लगाएंगे तो लोफ विल बिकम लोव्स. Irregular plurals don't follow the normal pattern. बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नाउन वर्ड सिंगुलर जो कि ये नॉर्मल पैटर्न जो हमने रूल्स अभी पढ़े उसको फॉलो नहीं करते, तो इन्हें हम सिंपली चेंज करेंगे. जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन मेन, अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल्स में पढ़ा. And then there are some words which do not change in plural form.
फॉर एग्जाम्पल sheep, deer, fish, series, species या ice। ये वर्ड्स कभी भी प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में चेंज नहीं होते, इनके स्पेलिंग सेम रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड the change rules for singular to plural nouns. Have a nice day. Thank you.